Today we are going to discuss about the atomic number and mass number. This is a very important topic. So let's discuss first what is atomic number of atom. What is this? Look at the definition. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. As we know, the atom having three subatomic particles: electron, proton, and neutron. Proton and neutrons are present in the nucleus of an atom, and electrons are revolving around the nucleus in shells, or which is also called as orbits. So they are saying atomic number is basically the number of protons only. Those are present in the nucleus, in the center of atom, is called atomic number. Some atom having one proton, some having two protons, some having 3, 4, 5, 6, 7 onwards. So that specific number of protons, the number of subatomic particle which is called as proton present in the center of the atom, present in the nucleus of the atom, is called atomic number. Atomic number is represented by a symbol Z. If somewhere written Z is equals to 1, so that means atom having one proton. Somewhere written Z is equals to 2, it means atom having two protons. Somewhere written Z is equals to 20, so it means atom having 20 protons, means the atom contains 20 protons in its nucleus. Is it clear? Yes, miss. As I told you, element, for example, this is sodium element. So element is made up of same type of atoms. So all the atoms present in element having same number of protons. This is an element, this is a piece of an metal, that is sodium. Sodium having Z means atomic number 11. So all the atoms of the sodium metal, the sodium element having protons 11. This atom having 11 protons, this atom having 11 protons, this atom having 11 protons in its nucleus. All atoms having 11 protons in their nucleus. Is it clear? Yes. Yes. Discuss about mass number. After that, I will show you how to write number of protons and the mass number on the symbol of element. But next, we are discussing about mass number. Mass number is also called as atomic mass. mass number को atomic mass भी कहते हैं. If there is written what is atomic mass, so you must know the mass number. इसे आप न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं. Is it clear? mass number Yes, miss. atomic mass भी कहते हैं, इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. Let's discuss. Mass number is the sum of, look at here, mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. As I said, atom having three subatomic particles: electron, proton, and neutron. Nucleus having proton plus neutrons in it, and orbits having electrons. Electrons are revolving around the nucleus. So
mass number is the sum of number of protons plus number of neutrons those are present in the nucleus of an atom is called mass number. For example, this is the atom of helium, for example. Helium having 2 protons. So 2 is the atomic number. Helium having 2 neutrons. So what will be its atomic mass? Class, well, what will be its atomic mass? If helium having 2 protons and 2 neutrons. Four. Abdul Rahman said 4. Because I said the number of protons plus number of neutrons is the mass number. So as I said, the protons are 2. So it means if I'm saying there are 2 neutrons, so 2 plus 2 will be 4. So helium having mass number 4. Mass number is represented as A. Capital A. Any confusion? No, miss. No, miss. See, A equal to Z plus N लिखा है ये बता देंगे काफी. No, miss. look at here. I'm taking example of carbon. Carbon having 6 protons. So it means carbon having atomic number 6. Carbon having 6 neutrons. So it means 6 proton, neutrons are also 6. So as I'm saying A is the mass number, A is the sum of protons plus neutrons. So A is equals to protons are 6, neutrons are 6, so total is 12. So carbon having atomic mass 12. Here you can see in this formula written is Z. Z means proton number and here I have written P. P means proton number, so both are correct. So you can write like this: A is the mass number that is equals to number of protons which is represented as Z plus number of neutrons. So carbon having 6 protons. So write here 6 plus carbon having 6 neutrons in its nucleus. So write here 6. अब मिस ये आप कैसे लिख रही हैं 6? ये सब बातें हमें पता है, साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं एंड वी नो द एटॉमिक नंबर्स एंड द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स. और हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं. हमें एक पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स का साइंटिस्ट ने प्रिपेयर करके दे दिया. अब हमें ये डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता है, ये हमें साइंटिस्ट बता चुके हैं एक्सपेरिमेंट्स करके. इज इट क्लियर? Yes, miss. ठीक है. Yes. So see this table. Here are some elements written in this table. First element is hydrogen. Hydrogen का symbol क्या होता है? What is the symbol? H. Symbols elements के याद रखने. हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है. हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता.
सो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया बिकॉज इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, और मास नंबर जो होता है वो सम होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है बट इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो मैं 0 लिख दूंगी। तो 1 + 0 विल बी इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन है उसका मास नंबर कितना हो गया? 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कार्बन की। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन एटम है, ये इसका सेंटर है। प्रोटॉन्स भी 6 हैं कार्बन के सेंटर में और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, हमें पता है एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो 6 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो Z इसका 6 हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 लिखा है। लेकिन जो मास नंबर होता है, जो A होता है, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। सो इन दोनों का सम कितना है? 6 + 6 12। तो जो A की वैल्यू है दैट इज 12। क्लियर हो रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है? Yes, miss. अबीहा समझ आ रहा है? तकी, हामिद, रियान, हया, Yes, miss. आपको आधी Yes, बात miss. समझ आ रहा है? Yes. Yes, miss. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N। प्रोटॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास 7, तो दैट मीन्स इसका Z जो है वो 7 हो गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। इस नाइट्रोजन के पास 7 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो मुझे बताइए इसका A कितना होगा? A कितना होगा? 14. 14 इसलिए होगा क्योंकि A जो होता है वो सम होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो 7 ही Z है और 7 ही N है, न्यूट्रॉन्स है। तो इन दोनों का सम कीजिए, 14 आपकी वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास समझने में? Nope. No, miss. बेटा किसी को भी प्रॉब्लम है मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखते कैसे हैं? लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है नाइट्रोजन, लिख लेते हैं नाइट्रोजन। हमेशा याद रखना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं सिंबल के। यहाँ पर Z लिखते हैं, मेरी स्क्रीन देखते रहिए, और यहाँ पर A लिखते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके बॉटम पे लेफ्ट साइड पे Z लिखते हैं और इसके टॉप पर लेफ्ट साइड पर A लिखते हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मैंने नीचे लिखना है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 मैंने यहाँ ऊपर लिखना है, लाइक दिस। ये बात किसी को नहीं समझ आई? मिस आ गई मिस है। एक बार फिर बता दें। एक बार मिस एक बार फिर बता दें। जी, एक बार फिर देख लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम, चलिए सोडियम की ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z नीचे लिखे जाते हैं, सोडियम के एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऊपर लिखे जाते हैं। सो लिखते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर, सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 7, सॉरी नॉट 11, मैंने 11 यहाँ नीचे लिख दिया। सोडियम का एटॉमिक मास यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं 11 + 12। सोडियम के पास 11
प्रोटॉन्स होते हैं और 12 होते हैं न्यूट्रॉन। तो 11 + 12 विल बी इक्वल्स टू 23। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो होता है 23। तो मैंने 23 टॉप पर लिखना है। नाउ दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नाउ इट्स क्लियर? यस एक और मिस। एग्जांपल देख लें। हम पोटेशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल ए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, यानी कि पोटेशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 19। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है 39। दैट मीन्स कि पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन्स होते हैं और 20 होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो इसका सम हो जाता है 39। सो दैट्स व्हाई पोटेशियम हैविंग एटॉमिक मास नंबर 39। ये करेक्ट वे है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है, मास नंबर ऊपर लिखना है। ठीक है? ओके मिस। चलो, ये तो बात हो गई एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की। पेपर में आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। पेपर में आपसे मतलब डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल देनी होती है। उसके अलावा पेपर में आपके लिए एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन होता है जो आपकी बुक में ये एग्जांपल दी है इस तरह का। ये एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ और कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देती हूँ अभी। तो जल्दी से इसे समझें, फिर मुझे 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके दिखाइए। स्टार्ट करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, आपके पास ए और जी चेंज करके आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। सो स्टार्ट करते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसे समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे हाउ मैनी प्रोटॉन्स, डाटा अभी नहीं दिखाते आपको। हाउ मैनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए 238 Z92। आपसे क्वेश्चन कर लिया है और उस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें बताइए कि एक एटम है, एटम का नेम नहीं बताया, उस एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बता दिया। एंड दे आर सेइंग कैलकुलेट और टेल अस हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। हु इज गोइंग टू टेल मी कि कितने नंबर मैं बताऊं? एटम के? नो अब्दुल रहमान, बाकी सबको जी। रियान, शबीना, मिस कैन आई टेल? शबीना, हामिद, इस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? मैं बताऊं? हामिद, रियान, इस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? अबीहा, अनाया, मिस मैं बताऊं? Can I tell? फातिमा, इस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? मिस कैन आई टेल? Can I tell? फातिमा, Miss, can I tell? फातिमा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मिस 330। नो जी। शबीना आप बताइए कितने प्रोटॉन्स हैं? सिर्फ प्रोटॉन्स जी 11। नो बेटा, हाउ इट्स 11? मिस कैन आई टेल? Can I tell? मैं बताऊं? मिस कैन आई टेल? जी बताइए हया। 92। 92, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसका एटॉमिक नंबर होता है एंड एटॉमिक नंबर इज 92। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर
92. Now tell me the number of neutrons. मुझे न्यूट्रॉन्स कौन बता रहा है? Miss can I tell? Miss can I tell? कोई और जिसे समझ Miss, आया 92. कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? जी Miss मैं फिजा, बताऊं? हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? Miss, can I tell? जी फिजा बताइए। 166. 166. 146. 146 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये मैंने कैसे किया है, जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया कंसंट्रेशन के साथ यहाँ देखिए। मैंने आपसे कहा था जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो हियर यू कैन सी देयर इज अ एटॉमिक नंबर दैट इज 92, क्योंकि Z का मतलब एटॉमिक नंबर है, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि 92 एटॉमिक नंबर है, तो आप क्विकली मेंशन कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो 92 हैं। तो आपने लिख देना है क्वेश्चन में, पहले डाटा बना लीजिए कि आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो डाटा में आपने ए लिख दिया, आपको गिवन है Z, आपको गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप क्वेश्चन मार्क आपसे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन मार्क आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद आपने लिखना होता है सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने एक हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की, यहाँ नहीं देनी, डायरेक्ट डाटा की हेडिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 92। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पूरा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, आपको जैसे कि पता है कि A बराबर होता है Z प्लस N के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला कॉपी में आपने इसी तरह लिखना है। आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो Z यहाँ प्लस हो रहा है, अगर इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो N विल बी इक्वल्स टू A माइनस Z। A कितना गिवन है क्वेश्चन में? A बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, तो इस A में से अगर आप प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे देन यू विल कम टू नो कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो A इज 238, सो 238 माइनस 92 कर दीजिए। तो आप कैलकुलेटर पे कीजिए, 238 माइनस 92, इट विल बी इक्वल्स टू 146। इज इट क्लियर? इज इट? Yes, Miss. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है A माइनस Z के। A आपके क्वेश्चन में गिवन था 238, Z आपके क्वेश्चन में गिवन था 92, तो 238 माइनस 92 विल बी इक्वल्स टू 146। ये फॉर्मूला बेसिकली इस तरह था, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। सो अगर आपने N कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, A माइनस Z कर देंगे, इस Z को दूसरी साइड पर ले जाकर A माइनस Z करेंगे, आपका N आ जाए। ठीक है, सबको क्लियर है? जल्दी Yes, miss. रफ कॉपी पे नोट Yes. करें, रफ कॉपी पे नोट कीजिए, जल्दी से रफ कॉपी पे नोट करें। A इज इक्वल्स टू, ये नोट करें जो मैं लिख रही हूँ, A इज इक्वल्स टू 24 एंड Z इज इक्वल्स टू 12। ये एक एग्जाम्पल, और दूसरी आप लिखिए A इज इक्वल्स टू 40 एंड Z इज इक्वल्स टू 20। ये दोनों एग्जाम्पल आपने मुझे करके दिखानी है कॉपी में, ठीक है? अच्छा, नोट कर लिया आप सबने रफ पे? ये फिर कॉपी में कर लीजिएगा और मुझे फिर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सबने नोट कर लिया? Miss एक मिनट। जल्दी से नोट कर लीजिए क्विकली। मिस बस एक सेकंड। मिस 12 ये 2 एग्जांपल्स जल्दी से नोट कीजिए। आपने इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों कैलकुलेट करने हैं। मिस हम कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे?
तो आपको पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनी कंफ्यूजन? No, miss. जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना प्रोटॉन नंबर होगा वो ही एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन नंबर्स होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। डन? मिस Yes, ये done. सेकंड वाले का में जी क्या लिखा है? यस मिस 20 ओके मिस ऊपर लिख वाले लिया। जी पे क्या लिखा है? 3 लिखा है, 12 लिखा है। 12 ओके मिस। चलिए नेक्स्ट आइए, जल्दी से देख लीजिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अगर एंड हो गई मीटिंग तो हम इसे कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटम तो बहुत छोटा होता है और एटम इतना छोटा है कि एक साइंटिस्ट उसे देख नहीं सकता बिना माइक्रोस्कोप के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, बिना एडवांस टेक्नोलॉजीज के। तो हाउ साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द एटॉमिक मासेस? उन्होंने फिर एटॉमिक मासेस हर एटम के कैसे कैलकुलेट किए? तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि करेक्ट एटॉमिक मास हर एटम का कैलकुलेट करते। तो उन्होंने क्या किया, दे कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। हम जैसे एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, आपका पास जैसे आप फिजिकल बैलेंस पर वेट करते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो एक साइड पर जो आपका जो है वो आपको जो शॉपकीपर दे रहा होता है कुछ भी, तो एक साइड पर वेट रखता है और दूसरी साइड पर आपकी चीज रखता है। आपने कोई भी फ्रूट लिया, कोई भी चीज ली, तो उसने वो वेट एक स्टैंडर्ड बना लिया है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन को स्टैंडर्ड बना लिया गया। कार्बन का करेक्ट मास कैलकुलेट कर लिया और उसे स्टैंडर्ड बना लिया। अब साइंटिस्ट ने उस मास के अकॉर्डिंग एक साइड पर समझे फिजिकल बैलेंस, एक साइड पर कार्बन रखा और दूसरी साइड पर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को रख कर कैलकुलेट किया कि कार्बन से कितना कम मास है या कार्बन से कितना ज्यादा मास है। इज इट क्लियर? Yes, miss.